यू शुड नॉट गिव द इंस्ट्रक्शन टू द एग्जामिनर। सो लैंग्वेज पे आपको बहुत ध्यान रखना है। बोर्ड एग्जामिनेशन में जब कॉपी चेक होती है तो इस पर एग्जामिनर को इरिटेट होने का मौका ना दे, तो इस हिसाब से हम करते हैं। और ये जो क्वेश्चन हम अभी कर रहे हैं ये इतना इंपॉर्टेंट है कि ऑलमोस्ट एवरी ईयर इट इज़ बीइंग आस्क्ड। सो यू शुड बी वेरी कॉशियस। इसलिए मैं इतना टाइम ले रहा हूँ, इतना आराम से पार्ट बाय पार्ट में आपको क्लियर कर रहा हूँ। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है। अब तक जो भी थ्योरम पढ़ा है इम्पॉर्टेंट सभी हैं, लेकिन ये एक्स्ट्रा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हर साल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पूछा ही जाता है। ओके स्टूडेंट्स, टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू अबाउट द पाइथागोरस थ्योरम। यू माइट हैव हर्ड दिस पाइथागोरस थ्योरम इन द प्रीवियस क्लासेज आल्सो, बट टुडे वी विल लर्न हाउ टू प्रूव दिस थ्योरम on the basis of similarity of triangles. So here we go. First we will draw the first we write the theorem that says that in a right angle triangle, a square of hypotenuse is equal to the sum of the square of other two sides of a right triangle. Is it clear? Say once again. I'll say that in this theorem says that the square of hypotenuse of a right triangle is equal to the sum of the squares of the other two sides. Let's draw the diagram. It will be much more clear than that. Here we go. Say this is A, this is B and this is C. So suppose this triangle is ABC and it is right angled at point B. Now what this theorem says that this hypotenuse of this triangle is AC square, and that should be equal to AB square plus BC square. Is that clear? Okay, now we go. How we'll prove it is, first we'll write that given. Triangle ABC is given in which angle B is equal to 90 degree. Is that clear? So if angle B is 90 degree, then a side opposite to this angle, that is AC, will be the hypotenuse. Okay, so we write that AC square is equal to AB square plus BC square. Is that clear? This hypotenuse square is equal to the square of one side and square of other side, sum of these two sides. So we'll write it as a given that ABC is a triangle out of which angle B is 90 degree. So to prove यह हो जाएगा that this will be to prove that AC square should be equal to AB square plus BC square. It is to be proven. Is that clear? Okay, now we'll do one thing, that we'll have a construction. What we'll do is, from point B we'll draw a perpendicular on line AC. Is that clear? From point B we'll draw a perpendicular on line AC, that is hypotenuse. Say it is here. And say this is meeting AC at point D. Now this angle is 90 degree. This also will be 90 degree. So this is the construction. We'll write here, drew
perpendicular from B to AC as BD. Is that clear? Now here many of the students write draw. Draw will be written by the book writers because that will instruct you, but once you are presenting into the exam, you should always write the things in past tense, that is drew. Is that clear? Drew means हमने इसको खींचा है, तो हमने किया है तो we'll write it drew. It is not, I am not getting, as a student I am not giving any instruction to examiner, I am doing it myself, so I will write it drew. Is it clear? Okay. Now the next step is prove. Here we will go for the proof. What we are seeing is, we are getting the total 3 triangles over here. First try to understand, then we will write it out. There are 3 triangles, that is A, B, C, one triangle, A, B, D, another triangle, and C, B, D is the third one. So what we have to do is, first we will take either of these 3, that is first we will take A, B, C and say A, B, D. Okay. So how we will write it, that in triangle A, B, C and triangle A, D, B. Here how we will write it, there is a system for this. See here, angle is A, B, C is right angle, so this angle B will come in the center, and the same way while writing for this triangle, smaller one, we will write, since D is the right angle, so D will be at the center, and since this A angle is common for the both, so A point will write it at the beginning. So A, B, C, and here A, B, and left over with the C here, and left with B here for the smaller one. Is that clear, that how we go for writing the naming that is this triangle? If it is clear, then it is very easy. What we have to do is we have to make these 2 triangles similar to one another. How we will go? We have learned that there are 3 theorem for this proving the similarity. One is triple A system, one is triple A, another is triple A or double A you can say, and the other one is, that is SAS, and the third one is triple S rule. So out of these 3, either of one can be taken. Angle B in the triangle ABC is 90 degree. Similarly, angle D in triangle ADB is again 90 degree. So we can write it here also, that angle B is equal to angle D, and that equals to 90 degree. You can write it in other way, in a bracket. You can write like this, each 90 degree. Okay. And the other one is, say angle A is coming, this angle is coming in triangle ABD, and the same angle is coming in triangle ABC also. So this we can write it, angle A is equal to angle A, and that is common to both triangle. Is that clear? That this both is common to both triangle. So now double A similarity, we can write it again, hence triangle ABC, it is here, and ADB, this is again a triangle, and this has become similar. Reason we can write it, that double A similarity. Double A similarity rule. We can write it like this.
Is that clear? Now for writing the ratio of the sides, we can draw a rough sketch. Two triangle we can draw so that there should not be any confusion that which to write. First triangle is ABC. So here A, B and C, and it is right angle at B. So ये राइट एंगल हो गया B पे. नाउ इन अदर ट्रायंगल दिस इज ADB एंड विच इज राइट एंगल एट D. सो दिस राइट एंगल पोर्शन विल बी रिटन एज D. स्टार्टिंग विल बी A and here will be B. Now if you can write it like this, then there won't be any confusion in writing the side ratios. Now we can write clearly AC square, AC divided by AB is equal to AB divided by AD. Is that clear? That corresponding sides should be in the ratio. AC is hypotenuse, here AB is hypotenuse. So AC divided by AB, and one side is AB here, and the other triangle, the same side, corresponding side is AD. So we can write it like this. Now we can write it, that implies AB, here A cross multiply करेंगे तो AB square will be equal to AC multiplied AD. Now this you say it is equation 1. Up to here it is clear. Now next we'll take other one, that is same ABD, and we'll take now CBD, that is this smaller triangle and this one. हाँ, यहाँ तक क्लियर हो गया. एक बार और फिर से देख लीजिए. हमको क्या करना है पहले कि दिया हुआ है दैट राइट एंगल ट्रायंगल में स्क्वायर हाइपोटेन्यूज का जो है वो बाकी दो साइड के स्क्वायर के बराबर होना चाहिए. ये हमें प्रूव करना है. तो कैसे हम स्टार्ट करेंगे लिखना? पहले क्या करेंगे, गिवन लिख देंगे. गिवन में क्या है, ABC इज अ ट्रायंगल दैट इज गिवन टू अस, आउट ऑफ विच एंगल B इज राइट एंगल दैट इज 90 डिग्री. नाउ अगला स्टेप में क्या लिखेंगे, टू प्रूव. अगला हेडिंग होगा टू प्रूव कि हमें करना क्या है. तो आवर ऑब्जेक्टिव इज दैट AC स्क्वायर शुड बी इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर. नाउ नेक्स्ट स्टेप soon after will be the construction, because to prove this theorem we have to go with the construction. वो construction क्या होगा कि हम पॉइंट B से एक परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे, वो AC पे होगा और वो मानते हैं कि हम वो D पॉइंट पे मिलता है. तो BD will be perpendicular to perpendicular on line AC. यहाँ तक लिख लिया आपने. अब हमारे पास यहाँ तीन ट्रायंगल मिल जाते हैं. एक बड़ा वाला ABC, दूसरा दो छोटे छोटे ABD एंड CBD. नाउ टेकिंग आइदर ऑफ दीज टू विल स्टार्ट आवर प्रूफ. तो पहले हमने क्या किया, ABC ले लिया और ADB ले लिया. ABC और ADB इन दोनों को लेकर के हम पहले इन दोनों को सिमिलर प्रूव किया. और सिमिलर प्रूव करने के लिए हमने पढ़ा है AA सिमिलरिटी रूल. उस रूल को यहाँ अप्लाई करेंगे. AA में दो एंगल, कोई भी दो एंगल अगर दूसरे ट्रायंगल के दो एंगल के बराबर हो जाता है तो वी कैन से दैट टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर. तो हम उस थ्योरम को अप्लाई करेंगे और उसको अप्लाई करके हमने इसको कर लिया कि एंगल B इज इक्वल टू एंगल D, दैट इज ईच इज 90 डिग्री एंड एंगल A इज कॉमन टू बोथ ऑफ द ट्रायंगल. सो दीज टू एंगल्स आर कॉमन, these two angles are equal, hence this triangle ABC is similar to triangle ADB. While writing this, naming the triangle, बहुत ज़्यादा कॉशस रहना है आपको कि देखना है कि जो एंगल राइट एंगल है उसको बीच में लिखना है, जो एंगल कॉमन है उसको उससे स्टार्ट करना है. दोनों ट्रायंगल में जो भी कॉमन एंगल होगा उससे आप स्टार्ट करेंगे और जो राइट एंगल होगा उसको बीच में लिखेंगे और तीसरा जहाँ भी आएगा वो लास्ट में ऑटोमेटिकली आ जाएगा. तो ये अब जब प्रूव कर लेंगे तो हमने कन्वर्स थ्योरम पढ़ा है ट्रायंगल के सिमिलरिटी का. उसमें क्या होता है कि जब कोई भी दो ट्रायंगल कन्वर्स मतलब सिमिलर हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स
जो है एक पर्टिकुलर रेशियो में होते हैं और वो एक दूसरे के बराबर होते हैं। तो उस थ्योरम को, उस क्लॉज को लिख करके यहाँ आप लिख भी सकते हैं चाहे तो, कन्वर्ज बीपीटी ठीक है। तो इसको यूज करके हम लिख लेंगे और फिर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी मल्टीप्लाइड ए डी। यहाँ तक क्लियर हो गया, इसको नोट कर लीजिए। ओके, तो जो हमारा रिजल्ट आया इस ट्रायंगल को लेके ए बी सी एंड ट्रायंगल ए बी डी या ए डी बी को लेकर के हमें रिजल्ट क्या है कि ए बी स्क्वायर दैट इज दिस साइड स्क्वायर हैज़ बिकम अप टू AC multiplied AD. Now this equation we have written it at the top that we will make use of it later on. अब दूसरा करते हैं, अब हम लेते हैं CBA ट्रायंगल एंड CDB ट्रायंगल। जैसा मैंने पहले बताया था आपको कि जिससे स्टार्ट का जो एंगल कॉमन है उसको हम उससे स्टार्ट करेंगे। यहाँ C कॉमन यहाँ भी है, यहाँ भी है, B यहाँ 90 डिग्री है, यहाँ D 90 डिग्री है और A को हम B के बराबर कहीं भी लिख सकते हैं इसको लास्ट में। तो ऐसे लिख लिया हमने। इसमें हम लिख सकते हैं कि एंगल D इज इक्वल टू एंगल B, एंगल C इज इक्वल टू एंगल C, दिस इज योर कॉमन एंड दिस इज योर again each 90 degree, hence triangle CBA becomes similar to triangle CDB। और रीजन क्या लिखेंगे हम, इसका रीजन अगेन वही होगा डबल ए सिमिलरिटी, ठीक है, डबल ए सिमिलरिटी हो गया। So here from here we'll make a conclusion that, अब यहाँ पे देखिए कि हमें क्या चाहिए, यहाँ पे हमें ए बी स्क्वायर चाहिए था, ए बी स्क्वायर हमको मिल चुका है। अब अगला चाहिए हमें बी सी स्क्वायर, तो बी सी स्क्वायर, तो बी सी को पहले ऊपर लिखेंगे, ठीक है, बी सी को ऊपर लिख लिया हमने, बी सी डिवाइडेड बाई, अब बी सी ये बड़े वाले ट्रायंगल का अगर बी सी ले रहे हैं तो छोटे वाले का क्या हो जाएगा, इसके लिए अगेन हम ट्रायंगल बना लेंगे ताकि बाद में कोई कन्फ्यूजन ना हो कि किसके लिए क्या लेना है। यहाँ पे हमने क्या लिखा, सी बी ए, ठीक है, तो इसको लिख दिया सी, यहाँ लिख दिया बी, यहाँ हो गया ए, एंड दूसरा हम क्या लिखेंगे सी डी बी, ये अगेन सी हो गया, ये डी हो गया एंड दिस हैज बिकम बी। सो अब हमें लिखा हमने बी सी, बी सी इज़ हियर, तो इसके नीचे क्या हो जाएगा, सी डी हो जाएगा, तो बी सी डिवाइडेड बाई सी डी विल बी इक्वल टू हियर, यहाँ पे क्या हो जाएगा। अब अगला हमें क्या चाहिए कि हमें बी सी अब नीचे चाहिए, क्योंकि बी सी स्क्वायर हमें लेना है, तो बी सी नीचे के लिए क्या होगा, ये बी सी लेंगे हम, तो इसको ले लीजिए बी सी को नीचे लेना है तो हम ए सी ले लेते हैं, ए सी डिवाइडेड बाई बी सी। इज दैट क्लियर, क्योंकि हमें रिजल्टेंट में बी सी स्क्वायर को लाना है, तो हम बी सी को यहाँ नीचे लेंगे, तो बी सी ये हो गई साइड हो गई, तो इसका करस्पॉन्डिंग साइड इधर क्या है, तो इट इज सी ए या ए सी, तो ऐसे लिख सकते हैं। और इससे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हमें मिल जाएगा, बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी डॉट सी डी, एंड दिस इज योर इक्वेशन 2, और इसको अगेन हम ऊपर लिख लेते हैं। इज दैट क्लियर। सो इसको ये आपको क्लियरली पता चल गया कैसे लिखना है आपको, और कैसे कैसे इसको सिमिलरिटी प्रूव करना आपने लिख लिया, इसका प्रोपोर्शनलिटी का ये रेशियो लिख लिया आपने, और इससे हमने दूसरा इक्वेशन बना लिया। एंड नाउ वी हैव दिस टू इक्वेशन विद अस, एंड with these two equations we will deduce the Pythagoras theorem. Let us see how we go here.
नाउ विल राइट अगेन दिस इन दिस इक्वेशन हाउ वी कैन राइट इट। इन दोनों इक्वेशन को हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। क्या करना है, यहाँ ऐड किया हुआ है, हमें रिक्वायर्ड है ऐड करने के लिए, तो यहाँ पे इन इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड कर देंगे। तो हम क्या लिखेंगे, एडिंग यहाँ भी लोग लिखते हैं ऐड इक्वेशन 1 एंड 2, अगेन दैट इज इरेगुलर। आपको क्या लिखना है कि एडिंग, बिकॉज यू आर डूइंग इट, यू शुड नॉट गिव द इंस्ट्रक्शन टू द एग्जामिनर। सो लैंग्वेज पे आपको बहुत ध्यान रखना है। बोर्ड एग्जामिनेशन में जब कॉपी चेक होती है तो इस पर एग्जामिनर को इरिटेट होने का मौका ना दे, तो इस हिसाब से हम करते हैं। और ये जो क्वेश्चन हम अभी कर रहे हैं ये इतना इंपॉर्टेंट है कि ऑलमोस्ट एवरी ईयर इट इज़ बीइंग आस्क्ड, सो यू शुड बी वेरी कॉशियस। इसलिए मैं इतना टाइम ले रहा हूँ, इतना आराम से पार्ट बाय पार्ट में आपको क्लियर कर रहा हूँ। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है। अब तक जो भी थ्योरम पढ़ा है इम्पॉर्टेंट सभी हैं, लेकिन ये एक्स्ट्रा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हर साल एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पूछा ही जाता है हर साल। तो अब इसको इक्वेशन 1 एंड 2 को हम ऐड कर लेंगे। यहाँ पे क्या लिख लेते हैं, इक्वेशन 1 है AB² इज इक्वल टू AC मल्टीप्लाइड AD, एंड यहाँ पे क्या है, BC² इज इक्वल टू AC मल्टीप्लाइड CD। और इसको जब हम ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, AB² दैट इम्प्लाइज का साइन जरूर लगाइए, A प्लस BC² इक्वल्स टू AC मल्टीप्लाइड AD प्लस AC मल्टीप्लाइड CD। नाउ वी कैन टेक AC कॉमन आउट ऑफ दिस टू, that is AC, and here becomes AD plus CD. Now look at here, this is your AD, this is your CD, and you have to add these two. So can we write this AC? Adding these two, can we write that AD plus DC equal to AC? Is not. So we'll write here, and that will become AC and multiplied AC, that equals to AC square, and here we can write that implies AB² plus BC² is equal to AC², and this is your Pythagoras theorem. This is your Pythagoras theorem. तो इतना आपको करना है कि आपको पहले क्या करना है, वंस अगेन वी गो, ये जो एक बड़ा वाला ट्रायंगल है और एक ये छोटा वाला ट्रायंगल है, इन दोनों को एक बार सिमिलर साबित करेंगे। इससे हम इनके साइड्स का रेशियो निकाल लेंगे, और रेशियो निकाल करके उनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें इक्वेशन 1 मिल जाएगा। फिर ये नीचे वाला छोटा वाला ट्रायंगल और ये बड़ा वाला ट्रायंगल लेकर के उनको सिमिलर प्रूव करेंगे, और उनकी साइड का जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आएगा दूसरा इक्वेशन। इन दोनों इक्वेशन को हम ऐड अप कर देंगे, और जब ऐड अप कर देंगे तो यहाँ इस तरह से आ जाएगा कि AB² प्लस BC² विल बिकम AC इंटू AD प्लस AC इंटू CD। AC विल टेक कॉमन, और AD और CD को ऐड करना होगा, और जब ऐड करेंगे तो यहाँ से हम पा रहे हैं कि AD और CD को ऐड करने पे वी आर गेटिंग AC। सो अगेन AC इंटू AC, दैट इज AC², एंड हेंस वी आर गेटिंग AB² प्लस BC² इज इक्वल टू AC², एंड दिस इज ऑल द पाइथागोरस थ्योरम। सो अब तक आपने जो भी पाइथागोरस थ्योरम प्रूव किया था या तो ज्योमेट्रिकली प्रूव किया था, अब इसको हमने प्रूव किया है भाई एंगल के ट्रायंगल के सिमिलरिटी रूल के हिसाब से। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार आपको इंसिस्ट कर रहा हूँ, इसको आपको बहुत ध्यान से समझना है। घर पे 2 4 10 बार प्रैक्टिस करिए, ताकि आप आंख बंद करके भी इसको, कोई नींद में भी उठा करके अगर आपको पूछ लेता है तो आप एकदम धड़ाधड़ करके लिख सकते हैं। एंड टेक केयर अबाउट योर राइटिंग पे बहुत ध्यान देना है, क्लैरिटी पे ध्यान देना है। दैट्स ऑल, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।